Hello everyone, this is your trainer Aishwarya Seth and I welcome you all once again to your own YouTube channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. So this is the India's first revolutionary platform where from all over India the students are getting 100% free quality education regarding various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, Master Cadre, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed and much more. So guys, subscribe and share this social educational channel to more and more aspirants so that this channel can flourish throughout India and every Indian students can get complete coachings of various competitive exams absolutely free of cost. So this is the main motive and objective of this sensational platform. So guys, I started this channel on 1st April 2020 and till now I covered three main topics and three full-fledged and complete topics of research aptitude, teaching aptitude and communication of UGC paper 1. So these three topics are very important according to the weightage and quantity weightage of the UGC paper 1. So today I'm going to start a fresh and new topic of ICT, that is the 8th unit of UGC paper 1. So any kind of subscriber, existing subscriber or the subscribers who joined late to this channel, please watch all my videos regarding complete topics of research aptitude, teaching aptitude and communication, because these videos are very important. So today we'll start with the fresh topic, that is ICT and its basics. ठीक है जी, दिस इज़ द 8th यूनिट अकॉर्डिंग टू द UGC पेपर 1. सो ICT का आज हम बेसिक करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, कौन कौन से टूल्स आते हैं ICT में, और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ ICT और नेचर ऑफ ICT में से जो है क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म्ड आता है. ठीक है जी. सो ICT है क्या, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सुना होगा आपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो है वो सबमर्ज्ड हैं. एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इसका मीनिंग और डेफिनेशन प्रॉपर दी हुई है. इट स्टैंड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इज डिफाइंड एज द डाइवर्स set of technological tools and resources used to communicate and to create, disseminate, store and manage information. So ICT is all about the diverse mixture of technologies, tools, resources and moreover to create, store, manage and retrieve, disseminate and differentiate any kind of communication from one person to another person, from one end to another end. कहने का मतलब है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो ये एक फुल फ्लेज जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है वो जाती है. ठीक है जी. डिससेमिनेट होती है, रिट्रीव होती है, पास होती है. और ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे technology is used to communicate required information and data so from one place to another place using basically three modes of communication. आपको पता है 3 तरह के मोड्स होते हैं, या तो ऑडियो मोड होता है, या वीडियो मोड होता है, या ऑडियो विजुअल इकट्ठा होता है. 3 तरह के मोड्स होते हैं कम्युनिकेट करने के, या तो ऑडियो करेंगे या विजुअल एड है या फिर ऑडियो विजुअल इकट्ठा होता है. 3 तरह के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. ठीक है जी. सो इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड एसोसिएटेड ह्यूमन इंटरैक्टिव मटीरियल्स दैट एनेबल द यूजर टू एम्प्लॉय दैम फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन एडिशन टू पर्सनल यूज़. अब देखिए, ट्रेडिशनल टीचिंग और आजकल की मॉडर्न टीचिंग में आपने खुद ही फ़र्क देख लिया होगा. ट्रेडिशनल टीचिंग क्या थी, सिर्फ टीचर बोलती थी, स्टूडेंट सुनते थे. ठीक है जी. पैसिव स्टूडेंट होते थे, एक्टिव टीचर होती थी और मोनोटनस हो जाती थी, बस सुनते जाना और बस लिसन करते जाना और खुद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते थे. लेकिन आजकल अगर ICT के थ्रू पढ़ाएंगे बच्चों को तो ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज जब वो प्रेजेंटेशन देखेंगे, जब वो डिफरेंट प्रोजेक्टर्स के ऊपर जो है डिफरेंट कंटेंट्स देखेंगे, उसमें एनिमेशंस भी होती हैं, उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, विजुअल्स भी होते हैं, ऑडियो भी होता है, सब कुछ होता है. तो उनकी सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट होती है और उनका जो लर्निंग बहुत ही इन्फ्लुएंसिव और लर्निंग बहुत ही
फ्रूटफुल रहती है। ठीक है जी। तो आईसीटी वैसे तो हर फील्ड में ही, किस फील्ड में आजकल आईसीटी यूज़ नहीं होता, हर फील्ड में होता है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में तो ऑब्वियसली है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही फ्रूटफुल बना देता है। अगर हम डिफरेंट एरियाज़ की भी बात करें, बैंकिंग में यूज़ होता है। ठीक है जी। मेडिकल लाइन में यूज़ हो सकता है, रिसर्च प्रोसेसेस में यूज़, रिसर्च आपको मैंने जब रिसर्च का फुल फ्लेज टॉपिक करवाया था तो वहाँ पे आईसीटी इन रिसर्च का फुल फ्लेज मेरी वीडियो है। अगर आपको मैंने बार बार वही मैं आपको कह रही हूँ कि कोई वीडियो मिस नहीं करनी है, बिकॉज एवरी वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम फुल फ्लेज कंप्लीट कोचिंग्स दे रहे हैं आपको। तो आपको कोई भी नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको स्टडी मटेरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको हर एक जो भी आपको यूनिट पढ़ाया जाएगा, चाहे वो यूजीसी का है, चाहे वो सीटेट पीटेट का है। ठीक है जी। दूसरे मैम जो है हमारी दूसरी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो इसी चैनल पे सीटेट पीटेट केवीएस पढ़ाती हैं। मतलब कोई भी हम कोर्स पढ़ा रहे हैं वो उसमें हम 100% जो है कोचिंग दे रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और ख़ासियत है इस चैनल की। तो इसलिए हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बात की, जैसे हम कह रहे थे, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आईसीटी यूज़ होता है सिक्योरिटी रीजंस को, सिक्योरिटी क्राइटेरियंस को मेंटेन करने के लिए। मतलब हर फील्ड में, आजकल की लाइफ में हर फील्ड में आईसीटी जो है वो यूज़ होता है। ठीक है जी। सो कोई भी टेक्नोलॉजी है, ऑल टेक्नोलॉजी यूज टू हैंडल टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन्स, इंटरनेट। ठीक है जी। कम्युनिकेशन मीडियम्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आईसीटी में ही आ जाती हैं। हर एक जो है टेक्नोलॉजी आजकल, जो मैंने आपको अभी बोली कि इंटरनेट है, चाहे वायरलेस नेटवर्क्स हैं, सेल फोन्स हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम है, नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम्स हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, कुछ भी है वो सारा कुछ किस में आ जाता है? आईसीटी में ही आ जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आईसीटी में आते हैं। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है, और दूसरी है टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मींस जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, डाटा पास करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो सैटेलाइट बेस्ड भी हो सकती है। ठीक है जी। सैटेलाइट बेस्ड मीन जो सैटेलाइट्स के थ्रू जाती है, या फिर टेरेस्ट्रियल बेस्ड, मतलब जो हम मैनुअल भेजते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई भी हम ईमेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो फ़ोन के थ्रू कुछ करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल बेस्ड हो जाते हैं। मींस जो हम टेरेस्ट्रियल वैसे होता है ऑन द लैंड और ऑन द प्लेन्स, नॉट फ्रॉम सैटेलाइट्स बट विदाउट सैटेलाइट्स। ठीक है जी। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी टेलीविज़न की हो, कंप्यूटर की हो, इंटरनेट की हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, रेडियो की हो, रेडियो एक्टिविटी की हो, कुछ भी हो, रिमोट सेंसिंग भी आ जाती है। हर एक चीज़ आजकल आ जाती है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो पास करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? आईसीटी के। सो नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशंस। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं आईसीटी की। हम जैसे हम पहली पढ़ लेते हैं, देर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ आईसीटी। सो आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज ए डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेट, टू क्रिएट, डिसमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज जस्ट लाइक रेडियो एंड टेलीविजन एंड टेलीफोनीज एक्सेट्रा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारा कुछ ही, जितनी भी टेक्नोलॉजीज से हम कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इसमें डाइवर्सिफाइड होती हैं, और उसके थ्रू हम जो है कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है यूजीसी पेपर में। ठीक है जी। तो आईसीटी टूल्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं? आईसीटी टूल्स कौन कौन से हैं? रेडियो है, टेलीविजन है, वीडियो है, डीवीडीज़ है, टेलीफोन, फिक्स लाइन मोबाइल, सैटेलाइट सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, सर्विसेज एसोसिएटेड विद दीज टेक्नोलॉजीज सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ब्लॉगर्स, ब्लॉगिंग्स, सब कुछ ही आईसीटी में। आजकल की सारी मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आईसीटी इज़ ऑफन यूज्ड एज द एक्सटेंडेड सिनोनिम फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले चलती थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? आईसीटी।
बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हमने क्या मिक्स कर दिया, प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तभी क्या बना आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे टूल्स जो आप स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको पढ़े और आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे टूल्स क्या हैं एंड टेक्निक्स कौन किसके हैं, आईसीटी के हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, आईसीटी के पहले फीचर्स देखते हैं, फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी। सबसे पहले information and communication technology, ICT is often used as the extended synonym for the IT। मैंने आपको ये बात क्लियर पहले ही कर दी कि IT की ही एक्सटेंडेड फॉर्म कौन सी है, ICT है। इट इज़ अ मोर एक्सटेंसिव टर्म दैट stresses the role of unified communications and the integrations of telecommunications such as telephone lines and wireless signals, computers, as well as necessary enterprise software, middleware, storage and audiovisual system which enable users to access, store, transmit and manipulate information। तो जितनी भी ये आपका फुल फ्लेज, जितनी भी मैंने आपको ये बताए हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, चाहे वो वायरलेस हैं, चाहे वो विद वायर हैं, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो किसी भी तरह के टेलीकम्युनिकेशंस हैं, वायरलेस नेटवर्क्स हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, कुछ भी है, वो सारा कुछ किस में आ जाता है, वो ही आईसीटी का, आईसीटी में सब कुछ आ जाता है। तो ये फीचर्स भी हैं आईसीटी के कि उसका नेचर कैसा है, किस तरह से जो है आईसीटी कंप्राइज हुई है, कैसे बनी है, क्या क्या उसमें हम कर रहे हैं, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वो सारे फीचर्स में आ गए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, द टर्म आईसीटी इज़ ऑल्सो यूज फॉर टू रेफर द कन्वर्जेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एंड टेलीफोन नेटवर्क्स विद कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू अ वेरियस लिंकिंग सिस्टम। जब तक लिंकिंग नहीं है, जब तक प्रॉपर नेटवर्क मेंटेनेंस नहीं है, विदाउट नेटवर्क जो है वो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। आईसीटी इज़ ऑल अबाउट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क है तो आईसीटी काम करेगी, नेटवर्क नहीं है तो ऑब्वियसली विदाउट नेटवर्क तो कुछ भी जो है डाटा हम पास नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये कन्वर्जेंस है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी कम्युनिकेशन की सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको वहाँ पे कन्वर्जेंस का मीनिंग बताया था। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक यूनिफाइड सिस्टम होता है, कोलैबोरेशन सिस्टम होता है, किसका, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का कोलैबोरेशन सिस्टम। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, सबका जो है वो कोलैबोरेशन किस में आ जाता है, कन्वर्जेंस में। और कन्वर्जेंस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट एंड फीचर ऑफ द आईसीटी। सो आईसीटी कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट, ट्रांसमिट और रिसीव इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ डिजिटल फॉर्म। ऑब्वियसली डिजिटली आजकल हो रहा है एडवांसमेंट, जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, डाटा में मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं उसमें क्या है, ये डिजिटाइज्ड फॉर्म में होता है। और ये भी एक आईसीटी की खासियत है। सो आईसीटी इज़ डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी विद अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, स्पेशली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ये सारा उसका फीचर है। एंड आईसीटी हैज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन सिंस द कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड एप्लीकेशंस इन्वॉल्व इन आईसीटी आर कंस्टेंटली इन्वॉल्विंग ऑन दी ऑलमोस्ट डेली बेसिस। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं लेके चल रहे हैं, वो कहते हैं सारी यूनिफाइड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो आईसीटी में ही सबमर्ज्ड हैं और आईसीटी में ही आ जाते हैं। तो जो हमने अभी फीचर्स पढ़े उनका एक स्क्रीन के ऊपर आप एक ओवरव्यू देख लीजिए, बिकॉज आईसीटी की जो फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स सेम ही हैं। यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू सा लिया है कि एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस एंड इनोवेशन, ये तीन जो हैं वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं फीचर के। तो जो भी अभी आपने ये फीचर्स में पढ़ा, इनका सबका जो ओवरव्यू है या निष्कर्ष है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एफिशिएंसी है, इसमें फास्टर, चीपर, फ्यू स्टेप्स हैं, लेस पीपल है, लेस पेपर वर्क है। तो इससे क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है हमारे आईसीटी से, हमारी कम्युनिकेशन की। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है, मोस्ट इंटरेक्टिव, फ्यूअर एफर्ट्स, कस्टमाइज्ड सिनेरियो, पर्सनलाइज्ड सिनेरियो, अचीवेबल, ट्रांसपेरेंट, सर्चेबल। ये सब फीचर्स क्या हैं, ये फीचर्स हैं इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। सब कुछ कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स हुम वी आर डीलिंग विद। ठीक है जी। पर्सनलाइज होकर अचीव करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ट्रांसपेरेंट जो है, कोई भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी है उसमें। ठीक है जी। कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं है उसमें, और हर एक चीज़ जो है इफ़ेक्टिवली हो रही है। और इनोवेशन में क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं, न्यू वर्जन्स आ रहे हैं। अब क्या है, पहले विंडोज़ आती थी,
तो विंडोज़ के बाद फिर विंडोज़ XP आई, फिर विंडोज़ 10 आई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स अपडेशंस जो हैं वो हर चीज़ में होती रहती हैं, चाहे वो प्रोसेसर्स हों, चाहे वो विंडोज़ हों, चाहे वो किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी हो। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ICT। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है या ये एक टॉपिक समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेरिट्स ऑफ द ICT। सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन पहले क्या होता था, ICT अगर नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था, मीडिया नहीं होता था, तो क्या होता था, एनवेलप होता था, लेटर्स होते थे, ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग होता था। लेकिन आजकल क्या है, एक क्लिक कीजिए, व्हाट्सअप चला गया, एक क्लिक करें, आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज चला गया, क्विक जो है वो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्विक मैसेजिंग है, और कुछ भी एक क्लिक के ऊपर ईमेल चली जाती है, कुछ भी हम क्विकर एंड मोर एफिशिएंटली जो है हमारी जो है स्पीड और बढ़ गई है कम्युनिकेट करने की। और स्पीड अगर बढ़ी है तो यहाँ पे हमारी टाइम कंज्यूमिंग, अगर स्पीड बढ़ गई तो मीन्स टाइम कंजम्पशन जो है वो कम हो गई है और बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुकी है, ठीक है जी। और उसमें क्या है, सब सेकंड क्या है, ग्लोबलाइजेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेव्स मनी ऑन फ्लाइट्स एंड accommodation. ICT has not only brought the countries and people closer together, but it has allowed the world's economy to become a single independent system to contact either a business और दी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हाँ जी, ये अब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेशंस इन फॉर दी ट्रेड और बिजनेस और कॉमर्स। सो यहाँ पे क्या है, पहले ICT नहीं होती थी तो सब आइसोलेशन में जो है वो ट्रेड करते थे, अपने डोमेस्टिक ट्रेड ही होता था। लेकिन ICT जब से आई है ग्लोबलाइज्ड वे में, पेपर वर्क तो बिल्कुल कम हो गया है, सब सारी ट्रांजैक्शन, सारी बिजनेस डीलिंग्स, सारी कोटेशंस, बिडिंग्स जो भी है वो सारी ऑनलाइन चली जाती हैं, और फट से जो है आपस में हम जो है वो डाटा शेयर कर लेते हैं और कोई भी डील फाइनल कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि बिज़नेस बहुत फास्ट हो गया है ICT की मदद से, और इकॉनमी जो है एक इंटीग्रेटेड इकॉनमी जो है विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन बन चुकी है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अब आप देखिए, एक बार इंटरनेट का आप डाटा पैक डलवा लेते हैं 120 रुपये का या 99 रुपीज़ का, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं, 140 रुपीज़ का भी आता है, 200 रुपीज़ का भी आता है, 250 रुपीज़ का भी। तो जो भी आप एक मंथ में उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लगा लेते हैं, उससे आप अनलिमिटेड जो है वो कुछ भी एक्सेस करते रहते हैं। आपकी कितनी कॉस्ट लगती है, एक ईमेल भेजने की कितनी कॉस्ट लगती है, आपका एक टेलीफोन मैसेज भेजने की कितनी कॉस्ट लगती है, मोबाइल से कोई भी चैट करने की कितनी कॉस्ट लगती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल चीपर है। फ़ोन कॉल्स क्या हैं, वो बहुत ही, एक बार आपने डाटा डलवा लिया, ठीक है जी, एक बार आपने जो है आपके पोस्ट पेड कनेक्शन है, प्री पेड कनेक्शन है, वो सारा इसमें ही आ जाते हैं ना। तो कॉल कितनी चीप हो गई है, नेट कितना चीप हो गया है, ट्रांजैक्शंस कितनी करनी कितनी चीप हो गई है। तो यहाँ पे क्या, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या, ग्रेटर अवेलेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, 24/7। ये नहीं है कि रात को अगर 4 बजे आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, कोई इमरजेंसी पड़ गई है, तो आपको गूगल 4 बजे कोई शो नहीं करेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन, नहीं। गूगल एंड एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज़ अवेलेबल 24/7 विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ मेड पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू be automated, giving clients access to a website or voicemail 24 hours a day 7 days a week। 24/7 जो है एक्सेसिबिलिटी हो गई है। ब्रिजिंग द कल्चरल गैप, ठीक है जी। अब पहले क्या था, कल्चरल्स, अब क्या है, ICT क्या है उसमें it bridges the cultural gap by helping the people from different cultures to communicate with each other and allow for the exchange of views and ideas, thus increasing the awareness and reducing the prejudice। कोई भी बायसनेस है, प्रिजुडिस है, उसको ख़त्म करके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के जो पीपल हैं वो ICT के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ थॉट्स करते हैं, बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को देते हैं, लेते हैं। ये सब कुछ क्या है, ये क्या है, कल्चरल गैप जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ICT ने। कल्चर को, सब कल्चर्स को जो है वो इक्वलाइज़ कर दिया है ICT ने। कल्चरल गैप और कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये सबसे बहुत अच्छी अच्छी मेरिट्स जो हैं वो ICT की हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ICT की और मेरिट्स भी हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, ऑब्वियसली IT सेक्टर में और ये आजकल हर एक कोई सेक्टर एडवांस सेक्टर है, जॉब क्रिएशंस हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं ICT के।
ठीक है जी, क्रिएशन ऑफ न्यू एंड इंटरेस्टिंग जॉब्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन। आपको मैंने पहले बता दिया, एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही फ्रूटफुल बना दिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बिल्कुल स्मूदन कर दिया है आईसीटी की एप्लीकेशन ने। ठीक है जी, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन ऑल्सो। सो थ्रू आईसीटी इमेजेस कैन ईजिली बी यूज इन टीचिंग एंड इम्प्रूविंग द रिटेंटिव मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट। मैंने आपको पहले बोला कि जो भी आईसीटी के थ्रू हम पढ़ते हैं एज अ लर्नर्स, तो वो क्या है, हमारे लार्ज जो है बिल्कुल लॉन्ग रिटेनमेंट रहती है, कितने लंबे समय तक उसको याद करके हमारे माइंड में रिटेन रहती है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, थ्रू आईसीटी टीचर्स कैन easily explain complex structures, instructions and ensure students comprehension। कितनी भी complex जो है डायग्राम हो, कोई भी ग्राफिक हो, कोई भी डाटा हो जो मैनुअली बना करके ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है बहुत टफ रहता है, वो आईसीटी के थ्रू हम प्रोजेक्टर्स के थ्रू प्रेजेंटेशंस बना के, इवन कि जो भी इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर बहुत सारी एक इन्फॉर्मेशन के 100 लिंक खुल जाते हैं। तो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो है वो इन्फॉर्मेशन या कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो कंटेंट है, डायग्राम्स हैं, वो आईसीटी के थ्रू क्या है, टीचर्स जो हैं वो इजीली जो है वो स्टूडेंट्स को दिखा करके शो करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, थ्रू आईसीटी टीचर्स आर एबल टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्लासरूम्स एंड मेक द लेसन्स मोर इन्जॉयबल, वेरी इजी। ठीक है जी, सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आईसीटी की मेरिट्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ। तो एजुकेशन डीमेरिट्स क्या हैं कि अब क्या है, जिनके सबसे पहले एजुकेशन, जिनको तो आईसीटी की प्रॉपर जो है टेक्नोलॉजी का पता है कैसे यूज़ करना है, तो वो तो उनके लिए जॉब्स तो हैं या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन जिनको द पीपल हु आर नॉट टेक्नोलॉजी सेवी, हु आर नॉट आईसीटी सेवी, सो उनके लिए जो हैं, जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं, जो 40 प्लस जनरेशन्स हैं, ठीक है जी, आजकल की जनरेशन्स को तो सारा पता है, लेकिन जो थोड़ी सी मिडल एज की जनरेशन्स हैं या ओल्ड एज की हैं, तो उनके लिए जो है आईसीटी सीखना बहुत मुश्किल है इस एज में, और अगर सीख भी लेते हैं तो उनको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, मिनिमल रह जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो ये एक डीमेरिट बन गया। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, अब यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आ गया कि द बिग इशू है कि टेक्नोलॉजी को हमें सीखना पड़ता है। जब तक हम आईसीटी की टेक्नोलॉजी, अब कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जितने मर्जी आप जो है लिटरेट हो, आप एमबीए हो, आप एमकॉम हो, कोई भी आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हुई है, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको डाटा स्टोर करना नहीं आता, आपको इंटरनेट में डीलिंग्स करनी नहीं आती, आपको नेट सर्फिंग नहीं आती, या प्रॉपरली कोई भी आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना आता, तो आपका जो एजुकेशन है वो इतनी जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहती है। सो विद द एजुकेशन, विद द एकेडमिक्स, यू नीड टू learn each and every technology which is used in your job, right? In your job, whatever you are doing, these technologies should be learned, तभी आपको जो है इसमें जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा सा खतरा रहता है। जिसको टेक्नोलॉजी आती है उसको जॉब मिल जाती है इजीली, जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती उसको जॉब नहीं मिल सकती है कई बार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, ओवरराइडिंग कल्चर्स। ओवरराइडिंग कल्चर्स का मतलब होता है, अब हमने मेरिट्स में करा कि कल्चरल गैप को जो है वो कम करता है, लेकिन यहाँ पे एक डीमेरिट भी है कि ओवरराइडिंग कल्चर्स मतलब आपस में कल्चर्स में कंपटीशन भी करवाता है आईसीटी। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, कई बार हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार हम इंडियन कल्चर जो है ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार हम क्योंकि सो मैनी सेवरल अनलिमिटेड प्रोग्राम्स एंड अनलिमिटेड कंटेंट्स आर अवेलेबल थ्रू आउट इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। तो क्या है, कोई भी कल्चर दूसरे कल्चर को डोमिनेट कर सकता है ईजिली। ठीक है जी, सो दी वाइल आईसीटी मे हैव मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, बट इट हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वन कल्चर कंज्यूमिंग अनदर वीकर वन। एक कल्चर दूसरे कल्चर को वीक भी कर सकता है अपनी डोमिनेंस के थ्रू। जिसका ज़्यादा कंटेंट है आईसीटी में, जो ज़्यादा पावरफुल आजकल बन रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, वो डोमिनेंट हो जाएगा और वो दूसरा जो है वीक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओवरराइडिंग कल्चर्स का इशू आ सकता है आईसीटी में। ये सारे डीमेरिट्स हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्राइवेसी का इशू हमेशा आता है। हैकर्स होते हैं, ठीक है जी, हैकिंग हो जाती है बहुत ईजिली। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, ठीक है, दो द इंफॉर्मेशन इज़ क्विकर, ईजियर and more convenient to share and pass, but still privacy issues are still a big issue
फॉर द आईसीटी, बिकॉज कई बार क्या है आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इवन कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें से फाइनेंसेस भी चोरी हो जाते हैं, बहुत कुछ आपकी डिटेल्स जो है वो कोई और यूज़ कर लेता है। तो इस तरह के प्राइवेट इश्यूज़ और प्राइवेसी इश्यूज़ ज़रूर रहते हैं आईसीटी में। तो ये इसका डीमेरिट है, रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। और हमें क्या है, अब क्या होता है, हम 100% टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम क्या है, हमारी ब्रेन पावर कम हो रही है। पहले क्या होता था, हर एक चीज़ हम अपनी ब्रेन में स्टोर करते थे। किसी का मोबाइल नंबर है, किसी का फ़ोन नंबर है, किसी का डाटा है, किसी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन है, वो या हम खुद लिख लेते हैं, अपने रजिस्टर मेंटेन कर लेते थे या मेमोरी में स्टोर कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, हमें क्या है, हमें पता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डाटा, हम बस क्या करेंगे, डाटा को स्टोर कर लेंगे कंप्यूटर के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर बस पीडीएफ्स बना लेंगे, डाटा स्टोर कर लेंगे। बस क्या है, हमारा 100% किसके ऊपर रिलायंस है, टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलायंस हो चुका है। तो यहाँ से हमारी मेमोरी पावर, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी खुद की मेमोराइजेशन जो है वो वीक कर रहा है। हमें जो है वो मेंटली जो है वो वीक कर रहा है। कौन सा, दी 100% डिपेंडेंसी अपॉन दी आईसीटी टेक्नोलॉजी। तो जब हम 100% किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो हमारा खुद का ही क्या है, मेमोरी पावर और भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे 100% जो भी है इन्फॉर्मेशन, कई बार जो नेट पे आपको दिखाई देती है वो रिलायबल कई बार नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, विकीपीडियाज़ हैं, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन का सागर, ओशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। लेकिन कई बार क्या होता है, इनमें भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं कई बार फेक या रियल इन्फॉर्मेशंस उन्होंने शो नहीं की होती हैं। इवन कि कई ऐसी साइट्स हैं जो फेक साइट्स होती हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कंप्यूटर से या इंटरनेट से, कई बार वो इन्फॉर्मेशन जो है रिलायबल नहीं हो पाती है। 100% ट्रस्ट वर्दी और 100% जो है उसमें कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो उस वजह से क्या होते हैं, हम उसी अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं या अपने में किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं, अपने ऑफिशियल मैटर्स में यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आ जाता है। ठीक है जी। सो 100% रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एट ऑल प्रोवाइडेड समटाइम्स बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ द आईसीटी। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर वायरसेस। येस, जैसे बॉम्ब्स है, ट्रोजन्स हैं, मालवेयर्स हैं, स्पैम है, फिशिंग है, ये सब तरह की जो वायरसेस हैं या मालवेयर्स हैं, वो अगर हमारे कंप्यूटर्स में या आईसीटी बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में, सिस्टम्स में एंटर हो जाएं, तो हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो करप्ट और स्पॉइल हो जाता है। और उसको दोबारा हम फॉर्मेटिंग करवाने के लिए जो है उसको हमें फॉर्मेटिंग करानी पड़ती है। इवन कि कई बार तो डाटा टोटली लॉस्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये वायरसेस जो हैं वो हमारे आईसीटी और कंप्यूटर या इंटरनेट पे जितने भी डाटाज वगैरह हैं अपने, इवन कि हमारे अपने पीसीज पे, लैपटॉप्स पे, हमारे मोबाइल्स पे जो भी हमने सेव किया होता है, एक वायरस आ जाए तो वो सारा कुछ जो है वो करप्ट कर देता है। तो ये भी सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। डीमेरिट्स में, सेटिंग अप दी डिवाइसेस कैन बी वेरी ट्रबलसम। कई बार क्या होता है, इसकी सबसे मेन है आईसीटी की डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ की, आईसीटी की डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को इंस्टॉल करना या उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, कॉस्ट तो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है जी, एक ईमेल भेजने की कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है। आईसीटी पे कुछ भी हम डाटा शेयर कर रहे हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन सेटिंग की कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है। अगर हमने कंप्यूटर इंस्टॉल करवाना है, इवन कि अपने नया पीसी लेके आना है, नया लैपटॉप लेके आना है, जो नया आईफोन लेके आना है, कुछ भी नया लेके आना, उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है। और उसको सीखना, उसको सेट करना, ठीक है जी, वो सारा सेटिंग कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी वेरी कम्प्लेक्स समटाइम्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव। ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले बताया कि उसकी इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं मेरा स्कूल है, तो स्कूल में क्या है, अब स्टूडेंट्स के लिए मैंने कंप्यूटर लैब बनानी है। तो एक बार तो मुझे जो है वो ना करते भी मेरा 10-15 लाख का खर्चा तो आराम से आ जाएगा एक कंप्यूटर फुल फ्लेज लैब बनवाने में, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो एक बार तो कॉस्ट खर्चनी पड़ती है इंस्टॉलेशन की, टेक्नोलॉजी को लेके आने की। उसके बाद फिर वो 25 साल चलता रहता है, 50 साल चलता रहता है, वही सिस्टम्स, वही पीसीज, वही ऑपरेटर्स, वही डिवाइसेस, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बार इंस्टॉल करने की कॉस्ट बहुत आ जाती है। लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो वही क्या है, हार्ड फॉर द टीचर्स टू यूज़ विद द लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस यूजिंग आईसीटी टूल। अब क्या है, टीचर वही कामयाब है जिसको आईसीटी टूल्स को यूज़ करना आता है। लेकिन जिस टीचर को आईसीटी टूल्स को यूज़ नहीं करना आता, उसके लिए आईसीटी एक वरदान नहीं, एक बहुत ही
टफ जो है वो उसके लिए एक वर्क बन जाता है, ओवरलोड वो फील करती है कि मुझे अब ये भी सीखना पड़ेगा, ऐसे भी काम करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशंस भी बनानी पड़ेंगी एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे डीमेरिट्स हो जाती हैं आईसीटी की। सो आईसीटी की डीमेरिट्स आज हमने करी हैं, मेरिट्स करी हैं, डीमेरिट्स करी हैं, आईसीटी का मीनिंग डिटेल में कर लिया, आईसीटी के फीचर्स कर लिए, उसके टूल्स कर लिए, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई। आईसीटी यहाँ से क्वेश्चन जो है एक बार ज़रूर आता है पेपर में यूजीसी का, और जिसको आईसीटी का कंसेप्ट नहीं पता ज़रूर ये मेरी वीडियो देखे, इसमें आईसीटी का फुल फ्लेज जो है बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया है। ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो में कल मैं नई वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे नया टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, नेक्स्ट टॉपिक मैं वो कवर करूँगी। और साइमल्टेनियसली हमारी दूसरी क्लासेस भी चल रही है इस चैनल के ऊपर, सीटेट पीटेट और केवीएस की मिसेस भव्या रामपाल के थ्रू। सो शी इज़ अ वेरी एक्सपर्ट फैकल्टी। ठीक है जी। यूजीसी क्लासेस मैं पढ़ाती हूँ, ऐश्वर्या सेठ, और जो सीटेट पीटेट केवीएस की क्लासेस जो चल रही हैं साइमल्टेनियसली, दिस इज़ हैंडल्ड एंड गाइडेड बाय दी मिसेस भव्या रामपाल। तो आप जितने भी कोर्सेज हम क्योंकि 1 अप्रैल से ये अभी सिर्फ 1.5 मंथ हुआ है इस चैनल को स्टार्ट करे, हमने धीरे धीरे जो है आगे प्रोग्रेस में लेके जाना चैनल को। हर एक चीज़ आपको फुल फ्लेज समझाएंगे, कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक जो सिलेबस वाइज स्किप नहीं होगा, बहुत फ्रूटफुल है, फुल फ्लेज 100% कंप्लीट कोचिंग्स हैं हर एक कोर्स की। तो हर एक जो है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को इतना फ्लरिश करें, क्योंकि हमने तो स्टेप उठा दिया है। ठीक है जी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और एस्पिरेंट्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल का रेफरेंस दें, शेयर करें, ताकि हर एक इंडिया का स्टूडेंट जो है अपनी जो है किसी भी मजबूरी के वजह से आगे हो सकता है ड्रीम, कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस हो जाती हैं, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए वो को अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते, हर एक इंडियन जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकता है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ। गॉड ब्लेस यू ऑल।